Hello student, with a pleasant morning, I, at the platform of Shivaji Group of Institutions, welcome you all with a video lecture class. Student, the class is for 7th and we were continuing the topic that was degree of comparison. So degree of comparison, we will come to know that which word we use to compare someone, to say someone that you are one of the best one, and which word we use to qualify someone. So degree of the comparison, that is the term that is used in adjective portion, because in adjective we use some words to qualify someone, to modify your noun or pronoun. We can say that noun and pronoun are really having the qualifying term, that is adjective. An adjective is a word that qualifies your noun and pronoun. And noun and pronoun means the word that are having as a subject in the sentence. You can say that this is the word that we use as a subject in the sentence. So student, in degree of comparison, we will come to know the things that are having into your mind, that there are 3 degrees. I already discussed with you, and sir has also discussed it. I just want to remember those things or recall those things that you have studied in your previous lecture class. So there are 3 degrees: positive, comparative and superlative. Positive, comparative and superlative, these are 3 in number. So positive. Positive is the actual word, is the word that we use to qualify someone or to modify someone. Just like, you are sincere boy, Anjali is an intelligent girl, Kanpur is a polluted city, that is a nice pen, you are looking attractive, this is an interesting lesson, you people are getting very good. So the thing that we have into our mind to qualify or modify someone is called an adjective, and that we use as a degree of the comparison. So in this category, in the topic of the adjective, we'll come to know that which degree of thing is used to compare someone. Just like positive. Positive is to say that you are good. But if you want to say in a degree of comparison, you can say that you are as good as your friends. You are as good as your friend. This is that we say in positive degree. But in the comparative degree, what we do? In the comparative one, what we do? We are saying that you are better than your friends. You are more intelligent than your friend. This pen is mightier than that one. Kanpur is more polluted city than that of. Fine. So the people of Kanpur are more energetic than that of city. So here we are doing the comparison between 2 things, and in the positive degree we are telling about one thing, but in the comparatively manner. But in the superlative degree we have to qualify, we have to modify or points out only one thing. In a number of things you have to point out only one thing. Just like Kanpur is the polluted city, and you can say that Kanpur is one of the polluted cities. Fine. So there are 2 words that Kanpur is the most polluted city. This is something different. And if you are saying that Kanpur is one of the most polluted cities, so these 2 sentences are different in them. If you are saying that Kanpur is the most polluted city, there is not a single city that is as polluted as Kanpur is. The meaning of the first sentence is like that.
But I'm just writing this sentence before you that Kanpur is the most polluted city. So the meaning of this one is that there is no other city is as polluted as Kanpur is. This sentence is said in positive degree. It means Kanpur is only one the polluted city. Is only one polluted city. But if I write like this, Kanpur is one of the most polluted cities. So there is a difference in this sentence that there are number of polluted city in this country, like this number of polluted cities in the state, but Kanpur is one of them. Kanpur is one of them. So this is the basic difference between two, and these both sentences are written in superlative degree. So student, in our previous lecture class we came to know how can we change positive from positive to comparative and comparative to superlative. We came to know this thing very well, and there were different methods. Sometimes we use more and most, and just like difficult, more difficult and most difficult. But sometimes we are seeing that fast, faster, fastest. But sometimes we are seeing hot, hotter, hottest. And sometimes there is a common changes like good, better, best, bad, worse, worst. So this is a difference that we have discussed in our previous lecture. And the exercise of this one is given. And I also taught you that at what time you have to use than and to. If senior word is used, junior word is used like this, and inferior, superiors. So these words don't have than. In the place of that, we use to. To is used as a comparative degree, just like I am senior to you. You are not inferior to me. Fine. Now, the exercise A that is given on page number 28. Let's discuss the exercise. There is no animal stronger than the elephant. This is the exercise. So, students, the exercise has been discussed before you, but I just want to make a revision of that. There is no animal stronger than the elephant. So, how can you recognize it? You have to do the exercise on your book, page number 28, 29 and 30. This is your homework. I will discuss only two sentences, not more than this. There is no animal stronger than the elephant. This is the comparative degree. Charlie Chaplin is the most famous comedian. This is the superlative degree. So you have to write with pencil on your book, page number 28, page 28, exercise A, B, C, D. Exercise number A, B, C and D. You have to do all this exercise on your book. So, Kalahari is the hot desert. It's the positive degree. I need bigger shoe than you. It's a comparative one. This is the best year. This is the superlative. Mount Kilimanjaro is a high mountain. Is it not? Positive degree. Which is the most docile puppy in the litter? Superlative degree. The Airbus A380 is the world's largest passenger airplane. This is the superlative. It's warm day today, isn't not? It's a positive. Sentence number 10. How colorful that word is. It's a positive degree. So student, the basic thing is that you have to get into your mind that in the positive degree, we use the actual word, just like hot, just like intelligent. But in the comparative degree, what we use? Either more intelligent or better, like this, and than word is used in the comparative degree.
So student, if you are seeing than word and more word, so you will have to come to know that this particular sentence is written in comparative degree. And the third one, if you are seeing the most, if you are seeing the most, it means that sentence is written in superlative degree. So the exercise A is discussed here, and in exercise B, some words are given over here, and you have to fill this exercise. The first one, stick is the strongest. Second one, oldest. Dimple has a luxurious, and the which is the most precious. And the fifth one, my mom is the best. It is such a cool. She has such a charming. Meenu is more responsible, and it takes more. Sumit is tall. Is it tallest of all? So this is the exercise. Two words are given here. You have to choose which word is suitable in this point of view. And the exercise C is given over here. That is, the metropolitan city are bigger. Second one, the new trains have more. Worth are wider. Line is of better. The train takes less. We have recently moved into a large phone number. Airport is one of the highest. The temperature in Mussoorie is lower. The Indus Valley civilization is one of the oldest. Mukesh Ambani is one of the richest. Please switch on off all the lights, it's dark. The ends are the longest. I need a jacket smaller. The test was a cakewalk. Don't you think it was easier? King Solomon was the wisest. I think no other warrior has been a violent. The Times of India is the most popular. The sentences are given over here, you can see, and the option are also given here. Mangoes are not more expensive. An Indian has been declared to be the most enterprising. There is less. Mariana Trench is the deepest. The patient condition is worse. Puneet is as strong. He is senior. Correct the error in the following sentences. Exercise number D. He is senior. So what the word you will use here? To. He is senior to me. Ayushman is the best singer of the two. Because there are two persons, so you have to use better. Ayushman is the better singers of the two. Ayushman is better singer of the two. I will select the more better of the two players. I will select the better players of the two players. You will not use more because two comparative degree cannot be used. Better and more. The camera is much more. The camera is more expensive than that one. The sun is brighter today. So this one, the sun is brighter today, more. This is the best shirt I have. The most easy question, the easiest question. Shimla is as cold as Nainital during winter. Ostrich is the largest word. No other bird is as large as an ostrich. The last one, the movie that we have just saw was the worst. Baddest is written over here. Baddest is no degree. Bad, worst, worst. The worst that I have ever been. So student, this is the exercise that you have to on your book, and I hope so that you have got it very well. In our next class, we will continue in the next chapter. That is enough for you today. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed exercise 3.2. Now today we will discuss its theme assignment. So we will start with filling the blanks. Now first statement is, when an arrow is stressed in a bow, the mechanical energy changes into dash energy. Student, when an arrow is stressed in a bow, a mechanical energy changes into potential energy.
potential energy. Now second statement, the energy possessed by a body due to its motion is called dash energy. Student, the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Is called kinetic energy. And now third statement, dash is the SI unit of energy. Student, joule is the SI unit of energy. Now fourth statement, no work is done. No work is done when displacement takes place at dash to the direction of applied force. Student, no work is done when displacement takes place at right angles. Right angles to the direction of applied force. Now fifth statement, when a force of 5 Newton causes a displacement of 1 meter, the work done is student, as you know that the formula of work done is force into displacement. Here force is 5 Newton and displacement is 1 meter. So work done is 5 joule or Newton into meter. Student, Newton into meter is also unit of work done. So when a force of 5 Newton causes a displacement of 1 meter, the work done is 5 joule. Now student, making correct statement. First statement is the SI unit of energy is calorie. Student, this statement is incorrect because calorie was the earlier unit of energy. But in SI system, the unit of energy is joule. So the correct statement will be the SI unit of energy is joule. Now second statement, a kind of hidden energy in the atoms of elements or compounds is called electric energy. Student, this statement is incorrect because a kind of hidden energy in the atom of element or compound is called chemical energy. So the correct statement will be a kind of hidden energy in the atom of element or compound is called chemical energy. Now third statement, mathematically work is the product of mass and acceleration. Student, this statement is incorrect because mathematically work is the product of force and displacement of a body. So the correct statement, mathematically work is the product of force and displacement of a body.
Now student, take the correct statement. The first statement is the kinetic energy possessed by a body depends upon its mass and displacement, acceleration, velocity and distance. Student, the correct option is C, which is velocity. The kinetic energy possessed by a body depends upon its mass and velocity. And second statement is the work done by a body is the product of displacement and acceleration, speed, force and velocity. Student, the correct option is C, which is force. Means the work done by a body is the product of displacement and force. Now third statement is when two boys push a table in opposite direction with equal force, then student, suppose there is a box and one boy is applying force of 5 Newton from this side and another boy is applying force of same amount, which is 5 Newton from another side. Then you will see the box not move from original position and there is no displacement, and you know that without displacement no work is done. So when two boys push a table in opposite direction with equal force, then no work is done. The correct option is B. Now fourth statement is the SI unit of energy is Joule, Newton, Pascal and none of these. Student, as you know that the SI unit of energy is Joule. The correct option is A. Now student, fifth statement. The energy possessed by a body due to its position or configuration is called sound energy, mechanical energy, heat energy and potential energy. Student, as you know that the energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy. So the correct option is D, which is potential energy. Now sixth statement is in solenoid or electromagnet, the electric energy is converted into mechanical energy, magnetic energy, light energy and sound energy. Student, in solenoid or electromagnet, the electric energy is converted into magnetic energy. So the correct option is B, which is magnetic energy. Now seventh statement is in photovoltaic cell, light energy directly converted into electric energy, chemical energy, magnetic energy and mechanical energy. Student, in photovoltaic cell, light energy directly converted into chemical energy. So the correct option is B, which is chemical energy. So student, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue the chapter Element, Compound and Mixture. In this chapter there are 3 units, out of which this is second unit. The name is Pure Substance, Compound and Mixture. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो यूनिट 2 है इसका वो पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड एंड मिक्सचर वो क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस की. तो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस हम कह सकते हैं ऐसी सभी चीजें
बना हो, वो है प्योर सब्सटेंस। क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर की जो चीज बनी है उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अच्छा, तो ये बात हो गई प्योर सब्सटेंस की। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है ना बच्चे, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट है वो? पहला हो गया आपका एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? जैसे आपने पढ़ रखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है बेटा? एक एलिमेंट है, ठीक है। हीलियम पढ़ा हुआ है, हीलियम क्या है? एक एलिमेंट है। लिथियम, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, ये सब क्या है बेटा? एलिमेंट है। यानी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। हीलियम में क्या होगा? हीलियम में सिर्फ हीलियम वाले ही एटम होंगे। और लिथियम में क्या होगा? लिथियम में लिथियम वाले एटम होंगे। सो बेसिकली कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये हो गया। इसमें दो बाइफर्केशन है। पहला हो गया आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन वाले ही एटम होंगे, हीलियम है तो हीलियम में हीलियम वाले ही एटम होंगे। उसी तरीके से लिथियम है, उसी तरीके से बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होगा उसको हम कहेंगे एलिमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। नाउ व्हाट इज इट? कंपाउंड देखो बेटा क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, देन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जैसे मान लो पानी क्या है? पानी का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला वाटर का? H2O। ठीक है, तो ये वाटर का फॉर्मूला है जिसका H2O। इसमें कौन कौन से दो चीजें हैं? देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है ना? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो इसका होता है 1:8। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रेशियो 8 में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं वाटर। ठीक है ना? तो इसका यानी कि कंपाउंड क्या है कि कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, ठीक है, मिल करके एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है। कैसे प्योर होता है? क्योंकि इसमें क्या है कि जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, और क्या है? इनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है और एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिमेंट की और कंपाउंड की, जो कि दोनों प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है बेटा? जैसे कि हमने आपको बताया कि जो एलिमेंट जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है। बट इफ वी टॉक अबाउट मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब ही होता है दो चीजों से मिला हुआ। ठीक है, जब दो या दो से अधिक चीजें मिल जाती है तो वो मिक्सचर बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एक टाइप के पार्टिकल नहीं होते। इसमें क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के 2 और मोर टाइप्स के पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर जो है बेटा वो दो तरीके का होता है। वो भी पहला होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। अच्छा, इसका वर्ड का मतलब समझ लो। होमो मतलब होता है बेटा सेम। आपने बायो में भी पढ़ा होगा शायद। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अगर कोई मिक्सचर आपका एक जैसा है, ठीक है, अगर कोई मिक्सचर आपका बिल्कुल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसा थ्रू आउट है, तो हम उसे कहेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर है। देखो, जैसे ये ग्लास है, इसमें आपने पानी रखा और उसमें आपने चीनी डाल दी। अब पानी में चीनी घुल गई, घुलने के बाद क्या पता चली चीनी कहाँ चली गई? नहीं पता चली। इसका मतलब ये मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस है। ठीक है, हेटेरोजीनियस की अगर हम बात करें, समझ में आ रहा है ना होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसका थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन जो है वो सेम हो। इसके बाद अब हम बात करें हेटेरो की। हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस में डिफरेंट चीजें आती हैं। जैसे मान लो ये पानी है आपका और पानी के अंदर आपने अक्की मिला दिया, क्या? बालू, सैंड डाल दी। तो पानी के अंदर आपने जो सैंड डाली है वो नीचे जाके बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी इट विल सेटल डाउन। क्यों सेटल डाउन हो जाती है? क्योंकि वो मिक्सअप नहीं हो पाती वाटर के साथ। तो इसमें देखो, आपको इसमें हेटेरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पानी की लेयर आपको अलग दिखाई दे रही है और ये जो सैंड है आपकी जो नीचे जाके सेटल डाउन हो गई, इसकी लेयर अलग दिखाई दे रही है। दैट इज व्हाई ये क्या है? ये दो अलग अलग तरीके के मिक्सचर है। पहला हो गया आपको होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेटेरोजीनियस।
find out the examples of homogeneous mixture, and you also have to find out the 5 heterogeneous mixture. यानी आपको क्या करना है, 5 होमोजेनियस मिक्सचर्स के नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और 5 हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के नाम पे लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक में. ठीक है, इतना काम आपने करना है. उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एलिमेंट में और कंपाउंड में और मिक्सचर में. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. ठीक है, तो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है. देखो, अगर मान लो ये मिक्सचर है और इधर की साइड में कंपाउंड है, तो पहली बात तो ये देखो कि जो मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है, जो मिक्सचर होता है उसमें क्या है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होती हैं तभी वो मिक्सचर बनता है. ठीक है, उसमें 2 या 2 से 2 और मोर पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तब वो मिक्सचर बनता है. इसमें क्या है, कंपाउंड में जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करके एक फिक्स रेशियो में कोई चीज बनाती है तो वो कंपाउंड कहलाता है. इसमें क्या है, इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, इसमें रेशियो फिक्स होता है. इसमें 2 या 2 से अधिक टाइप के पार्टिकल होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो कॉम्पोजिशन में क्या है कि जो मिक्सचर होता है उनका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज, मतलब आप उसके कॉम्पोजिशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, क्या इसका कहने का मतलब है मेरे कि मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी आपने पानी में अगर शक्कर मिलाई, मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं, पानी में अगर आपने शक्कर मिलाई एक गिलास में 3 चम्मच शक्कर डाली और दूसरे वाले गिलास में 5 चम्मच डाल दी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट आप डाल रहे हो मिक्सचर बनाने के लिए वो आप अपनी मर्जी से डालते हो, डिजायर्ड रेशियो में डालते हो. लेकिन यहाँ क्या है, अगर पानी का फॉर्मूला 1:8 है, एक पार्ट इसका हाइड्रोजन है और दूसरा पार्ट इसका ऑक्सीजन है, तो क्या होगा कि ये हमेशा सेम रहेगा, यानी आपको एक ही पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन ही लगाना है. ठीक है, सो ये हो गया मिक्सचर और कंपाउंड में मेन डिफरेंस की रेशियो. इसमें डिजायर्ड रेशियो होता है और इसमें फिक्स्ड रेशियो होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो मिक्सचर का स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, या तो वो होमोजेनियस टाइप का दिख रहा होगा या फिर वो हेटेरोजेनियस टाइप का दिख रहा होगा. ठीक है, और जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा होमोजेनियस ही दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, और एनर्जी चेंज जब भी मिक्सचर बनता है तो कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है, नो एनर्जी चेंज. यहाँ क्या है, नो एनर्जी चेंज. लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो एनर्जी चेंज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज होता है और वहां पे नहीं होता है मिक्सचर में. ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं. ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं. लेकिन कंपाउंड अगर एक बार बन जाता है, जैसे कंपाउंड अगर वाटर की बात हम कर रहे हैं तो वाटर में 2 एलिमेंट हैं आपके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये अगर एक बार मिलकर के H2O बना लिए तो ना हाइड्रोजन उसमें बचा और ना ही ऑक्सीजन बचा, यानी ये दोनों ही अपनी आइडेंटिटी को खो चुके. तो यही चीज है कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, लेकिन कंपाउंड में उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है. दूसरी बात, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आप उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन, लेकिन कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन. समझ में आ गई बात? तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर कैन बी ऑफ 2 टाइप, होमो और हेटेरो, बट कंपाउंड ऑलवेज हैव होमोजेनियस कॉम्पोजिशन. ओके, मिक्सचर का जो रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट का वो डिजायर्ड रेशियो होता है, आपकी अपनी मर्जी का होता है. लेकिन कंपाउंड क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर के बनता है. मिक्सचर जब बन रहा होता है तो कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या है, एनर्जी चेंज हो रहा होता है. सो इस तरीके की चीजें क्या है, डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. अब अगर हम बात करें कि एयर मिक्सचर क्यों है या वाटर कंपाउंड क्यों है इसकी, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लो कि एयर जो है वो
वो मिक्सचर क्यों कहला रहा है और वाटर जो है वो कंपाउंड क्यों कहला रहा है। तो पहली बात तो एयर क्या है, मिक्सचर क्यों है बता रही हूँ। एयर में क्या है, सेवरल गैसेस कंबाइन होती है, सबका रेशियो अलग अलग होता है डिजायर्ड, है ना। तो एयर में देखो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, अदर गैसेस भी है। नाइट्रोजन होती है आपकी 78% और यू कैन से 79% और ऑक्सीजन होती है 21%, क्योंकि इसमें रेशियो जो है चेंज है। आपका रेशियो क्या है 78, 21 और इस तरीके से अदर गैसेस भी 0.01 तरीके की होती है। तो एयर क्या है, मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस आपकी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी एयर में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी चीजें पाई जा रही हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इसको क्या कर सकते हैं हम अलग कर सकते हैं बाय केप्ट इन वेरी लो टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है ना, फिजिकल मीन से हम इसको अलग कर सकते हैं इसकी गैसेस को। ठीक है, और जो एयर का कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे यहाँ की बात करें तो 78% है और 21% है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो, लेकिन ये कहीं और हो तो ये चेंज हो जाएगा रेशियो। ठीक है, तो ये बात हो गई एयर की। एयर मिक्सचर इसी वजह से है। ठीक है, इसका क्योंकि रेशियो चेंज हो जाता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। दूसरी बात अगर हम वाटर की कर रहे हैं, वाटर कंपाउंड क्यों है वो देखो। वाटर क्यों कंपाउंड है बेटा, सबसे पहली बात कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, उनका रेशियो क्या है 1:8 बाय वेट। ठीक है, इनका रेशियो 1:8 है। आप चाहे ये पानी आप हैंडपंप का लेके आइए, चाहे ये पानी आप सबमर्सिबल का लेके आइए, चाहे ये पानी अमेरिका का हो पानी, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, कहीं का भी पानी हो, क्योंकि ये कंपाउंड है तो इसका रेशियो क्या होगा 1:8 ही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। उसके अलावा जो वाटर में जो चीजें हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो टोटली क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रख रहे होते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड बना चुके हैं। दूसरी बात, जब भी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी या एनर्जी निकल रही होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी चेंज होता है, लेकिन मिक्सचर के बनने में एनर्जी में चेंज नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपका कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, या एयर क्यों मिक्सचर है या वाटर क्यों कंपाउंड है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ इट। Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in previous video I have discussed about Delhi Sultanate, chapter 4, Delhi Sultanate. Okay, Delhi Sultanate, the time period of Delhi Sultanate between 1262 1526, यानी दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 तक था। नाउ वी डिस्कस कि दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत विल बी डिवाइडेड इनटू 4 डायनेस्टीज। यानी दिल्ली सल्तनत जो था वो 5 यानी 5 डायनेस्टीज में डिवाइडेड था। फर्स्ट पहली कौन सी, सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो क्या थी, स्लैब डायनेस्टी। स्लैब डायनेस्टी is also known as the, yani founder of the Slav dynasty is also known as the Qutbuddin Aibak, because in that time Qutbuddin Aibak was the slave of Muhammad Ghori. Muhammad Ghori, who attacked in India, invaded in 17 times, पर उसने इंडिया पर 17 times अटैक किया था, because he wanted to only plunder the money. मैंने उसे केवल ही wanted to money, मैंने केवल उसे पैसे की नीड थी। ओके, आफ्टर द मोहम्मद गोरी, यानी आफ्टर मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश
were the slab of the Muhammad Ghori, because they were so Qutb yani Muhammad Ghori in many Muhammad Ghori appointed the governor, any governor of the India in Qutbuddin Aibak. So after any Qutbuddin Aibak, so after the death of Qutbuddin Aibak, his son-in-law Iltutmish ruled in India. After the Iltutmish appointed his daughter Razia as the emperor. Razia was a great woman. He ruled in India as a great emperor. After Razia के बाद many achievements of Iltutmish, मैंने कई achievements थी इल्तुतमिश की, मैंने इल्तुतमिश ने क्या काम किए, और इल्तुतमिश मैंने after the achievements of रजिया सुल्तान, मैंने रजिया सुल्तान की भी कई achievements थी which we discussed in previous video. After the death of रजिया की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन महमूद, who was Nasruddin Mahmud? Nasruddin Mahmud कौन था? ठीक है, Nasruddin Mahmud was the elder son of या younger son of the Iltutmish. मैंने Nasruddin Mahmud कौन था? Iltutmish का younger son, मैंने younger बेटा था. ओके, तो the time period of Nasruddin Mahmud. So after the death of Razia, there were some nobles take this decision to make any appointed the emperor as a Nasruddin Mahmud. Okay, the time period of Nasruddin Mahmud is 1246 to 1266. माने नसरुद्दीन का जो टाइम पीरियड था वो 1246 से 1266 तक था. ओके, in 1246 a few influenced novel, माने कुछ ऐसे novels थे who were not like to Razia, माने जो रजिया को पसंद नहीं करते थे. तो after the death of Razia, few novels take this decision, माने उन्होंने ये decision लिया कि raised to Iltutmish younger son Nasruddin Mahmud to the throne, माने कि Nasruddin Mahmud को सिंहासन पर बैठाया जाए. ओके, he was just, माने in that time he was just only 17 years old. माने when novels take this decision, माने जब novels ने ये decision लिया, तो Nasruddin Mahmud was only 17 years in that time. So he could not manage the empire. माने इसलिए क्या हुआ कि वह उस empire माने उस सीट को वो मैनेज नहीं कर सका. ओके, so he left the control in the hands of his father-in-law. माने इसलिए he left माने उसने empire माने उस सम्राट को यानी empire को कंट्रोल करने के लिए left the kingdom his father-in-law's बलबन, माने अपने father-in-law बलबन को ट्रांसफर कर दिया. ओके, तो फिर से आप देख लें कि Nasruddin Mahmud was the younger son of the Iltutmish. He was just 17 years old, so he could not manage the empire. माने इसलिए वह empire को मैनेज नहीं कर सका. So he left control in the hands of his father-in-law Balban. Okay, तो after the Nasruddin, माने नसरुद्दीन के बाद गयासुद्दीन बलबन was the father-in-law of Nasruddin Mahmud. Okay, गयासुद्दीन बलबन कौन था? नसरुद्दीन महमूद का father-in-law था. Its time period is 1266 to 1286. माने the time period of Gayasuddin Balban was 1266 to 1286. So after Nasruddin Mahmud, Balban came to power after the death of Nasruddin in 1266. माने 1266 में after the death of Nasruddin की डेथ के बाद Balban came to in power.
मैंने बलबन क्या था, केम टू इन पावर, मैंने वो पूरी तरह से पावर में आ चुका था. ओके, he first realized that prevailing weakness, he first realized that prevailing the weakness, माने सबसे पहले he prevailing the weakness, माने सबसे पहले उसने prevailing the weakness of the royal powers, माने उसने ये देखा कि prevailing of the weakness माने क्या weakness है of the royal powers में, because was due to interviews of the Turkish novels. Interviews of the Turkish novel. Interviews मतलब उसने एक सीक्रेट स्कीम रखी, ठीक है. गयासुद्दीन बलबन हैव a secret scheme for the Turkish novel, माने तुर्किश नॉवल के वीकनेस माने कमजोरी को समझने के लिए. ओके, thus he weakened the power of novels. Thus माने जब उसने देखा कि he was weakened the power in the novels, माने after see this weaken of the power of novels, कि novels की क्या weakness थी, तो by drawing a novel of distinction, माने उसने क्या की, एक लाइन, माने इस डिस्ट्रक्शन के लिए उसने एक लाइन ड्रॉ की कि between the सुल्तान and novels, माने सुल्तान और novels के बीच क्या होगी, एक लाइन, एक डिस्टिंक्शन की एक लाइन, माने एक लाइन होगी. So he tried to crush the powerful Turkish group of the novels. So माने इसलिए he tried to crush मतलब कुचलने के लिए, किसको, पावरफुल तुर्किश, माने जो in that time माने पावरफुल तुर्किश माने उस समय पावरफुल थे, group of novels माने that group of novels in that time called in 40, माने जिसे उस समय 40 यानी चालीसा कहा जाता था. ओके, he built a chain of the force, माने so he built a chain of the force, माने उसने क्या किया था, he built a chain of the force, माने उसने फोर्स की एक चेन माने चेन तैयार की on the frontier of the protect from the empire of the Mughal यानी मंगोल अटैक, माने जिससे he chain माने this force have the chain to protect माने जिससे ये सुरक्षा कर सके, किसकी, मुगल यानी मंगोल अटैक्स, माने because in that time Mongols were in powerful. Okay, now we discuss the achievements of the Balban. How many achievements of the Balban? यानी Balban was a great king, तो how many achievements, माने बलबन के achievements क्या थे. ओके, फर्स्ट क्या था, रिफॉर्म द आर्मी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, माने ही रिफॉर्म माने बलबन रिफॉर्म द आर्मी, माने उसने आर्मी को रिफॉर्म किया टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, माने जिससे लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके. ओके, सेकंड क्रिएटेड एन ऐप, माने क्रिएटेड एन ऐप एंड रिस्पेक्ट इन द माइंड ऑफ पीपल, माने उसने लोगों के माइंड में क्रिएट ऐप माने एक ऐसा ऐप और रिस्पेक्ट क्रिएट किया जिससे लोग क्या हो, माइंड एंड रिस्पेक्ट, ही क्रिएटेड एन ऐप और रिस्पेक्ट इन द माइंड ऑफ पीपल, माने उन्होंने लोगों के माइंड में एक ऐप और रिस्पेक्ट क्रिएट किया. नेक्स्ट इज थर्ड अचीवमेंट इज आल्सो कि मेड पीपल एंड नॉवेल्स रॉयल यानी लॉयल टू द क्राउन, माने जो मेड द पीपल माने जो भी लोग हैं, नॉवेल्स माने जो भी नॉवेल्स हैं, लॉयल टू द क्राउन माने सभी लॉयल टू द क्राउन माने क्राउन के लिए लॉयल हो. नेक्स्ट अगला पॉइंट जो था, पुट द एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर, माने जो भी उसकी प्रशासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो था, पुट इन ऑर्डर माने उसको उसने ऑर्डर माने ऑर्डर में किया था. ओके, नेक्स्ट द अचीवमेंट्स ऑफ द चेक द मंगोल इन्वेजन सक्सेसफुली, माने चेक द मंगोल इन्वेजन्स, क्योंकि जो भी मंगोल आक्रमण हो रहे थे यानी मंगोल आक्रमण हो रहे थे उससे भी उसने सक्सेसफुली चेक किया था. ओके, नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, माने उसने एक स्पाई सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जो कैसा था, एफिशिएंट, माने एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज किया था.
नेक्स्ट अचीवमेंट जो थी कि ही बिलीव इन द डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप, माने वह ये विश्वास करता था कि किंगशिप माने राजा जो है वो क्या है, डिवाइन थ्योरी माने एक दैवीय संपत्ति है, माने राजा एक क्या है, दैवीय शक्ति है। सो माने एवरी पीपल एक्सेप्ट टू किंग एज द गॉड ऑफ द अर्थ, माने जिससे हर व्यक्ति को राजा को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना होगा। ओके, नेक्स्ट अगला था फॉलोड द पॉलिसी ऑफ, माने ही यानी बलवान हिमसेल्फ फॉलोड द पॉलिसी यानी पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन, माने उसने स्वयं भी ब्लड और आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया, which implied being the ruthless of the enemies, which implied to ruthless to the enemies, माने जो enemies माने enemies के लिए being ruthless माने ruthless। ओके, तो स्टूडेंट्स आई हैव डिस्कस्ड the achievements of the बलवन, माने बलवन की अचीवमेंट्स क्या थी। ओके, एंड बलवन डाइड यानी बलवन डाइड इन 12, बलवन डाइड इन 1286 death of Balban। Okay, now students I have discussed many topics of this chapter today as Razia Sultan, Nasruddin Mahmud, Balban and achievements of the Balbans। So students, I hope you have understand and I will discuss other topics of this chapter in next video। Okay, thank you for attending this class। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आपका ये चैप्टर 5th उद्यानम कंप्लीट हो गया है। मैं इसका अर्थ पढ़ा चुकी हूँ और मुझे आशा है कि आप इसके शब्दार्थ भी याद कर चुके होंगे। हमेशा की तरह मैं फिर एक बार दोहरा रही हूँ, शब्दार्थ जरूर याद करें। शब्दार्थ तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वो तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, बट इसे आपको अर्थ समझने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये दोहरा लाभ हो गया ना, डबल प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, तो इसलिए शब्दार्थ जरूर याद करें। उसके बाद अर्थ पढ़ें चैप्टर का, तो बहुत आसानी होगी। तो उद्यानम जो ये चैप्टर था, इसमें सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द आपसे पूछे गए थे। ठीक है, ये जितने आप इधर देख रहे हैं, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द है। ये चैप्टर ऐसा था कि मोस्टली इसमें ये वर्ड्स आए थे। ठीक है, अब इसका अनुशीलनम स्टार्ट हो रहा है, यानी एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो बच्चों मौखिक है, नंबर 1। ठीक है, उसमें भी क्या है कि सारी क्वेश्चन मार्किंग वर्ड है। आप देखिएगा पेज नंबर 33, किस पेज पर है, पेज नंबर 33। तो ये प्रश्नवाचक शब्दों को आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखितम, इसमें नंबर 2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जिसमें है कि प्रश्नवाचक शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये सेंटेंस लिए हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। इनमें जो है आपके इसमें क्वेश्चन है स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नवाचक शब्द चुनें। स्थूल पद क्या होता है, यानी थिक वर्ड्स। तो इसमें से जो थिक वर्ड्स है वो है बच्चों देवान, पादपेश। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपकी बुक में ये वर्ड्स जो है वो थिक वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य लाभाय, उद्यानस्य, हरिताः, उद्याने और वर्तिका। तो जो ये वर्ड्स है, ये थिक वर्ड्स है। इन्हीं के बेस पर आपको कई ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए बच्चों, भक्तः देवान अनमत, इसमें कई जो ऑप्शन दिए उनमें से करेक्ट आंसर क्या है, कान।
पादपेषु पुष्पाणि विकसन्ति, करेक्ट ऑप्शन है केशु। जनाः स्वास्थ्यलाभाय भ्रमन्ति, करेक्ट ऑप्शन है किमर्थम्। उद्यानस्य वातावरणं शुद्धं भवति, करेक्ट ऑप्शन है कस्य। शुकाः हरिताः भवन्ति, इसका आंसर है कीदृशः। जनाः प्रातः काले उद्याने भ्रमन्ति, तो करेक्ट ऑप्शन है उत्तर। जले वर्तिकाः तरन्ति, इसका करेक्ट ऑप्शन है का। तो उत्तर वाले कॉलम में जहां रिक्त स्थान दिया है वहां आपको ये शुद्ध विकल्प लिखने हैं। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हुई। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 कराती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 है, उचित विकल्प से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित विकल्प से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें सेंटेंसेस 8 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सेंटेंस मैं अभी आपको लिखाती हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों, अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 पर उचित विकल्प से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इधर ये प्रश्न दिए हुए हैं और उसके बाद आपकी बुक में कई ऑप्शन दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पर, उसमें से करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही आपको बुक में फिल करना है पेंसिल से। जैसे पहला है प्रश्न, पादपेषु कानि विकसन्ति, पौधों में क्या खिले हैं, तो इसका उत्तर होगा पुष्पाणि। मालाकारा कान सिंचति, माली किन्हें सींचता है, करेक्ट ऑप्शन है पादपान। उद्याने के भ्रमन्ति, बगीचे में कौन घूमते हैं, तो आप करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे जनाः। वृक्षे कति शुकाः सन्ति, 10 तोते हैं ना। उद्याने कस्य वृक्षः अस्ति, बगीचे में किसका पेड़ है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आम्रस्य। आम्रस्य फलानि कीदृशानि सन्ति, आम के फल कैसे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है मधुराणि, यानी मीठे हैं। जनाः उद्याने किमर्थं गच्छन्ति, लोग बगीचे में क्यों जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा स्वास्थ्य लाभाय, स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। जनाः किमर्थं भ्रमन्ति, लोग क्यों बच्चों यहाँ किमर्थम नहीं होगा, कथम होगा। किमर्थम नहीं होता है क्यों, यहाँ क्वेश्चन मार्किंग वर्ड होगा कथम, लोग कैसे घूमते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शनैः शनैः, यानी धीरे धीरे घूमते। ठीक है, तो पहले का है करेक्ट ऑप्शन पुष्पाणि पादपान जनाः 10 आम्रस्य मधुराणि स्वास्थ्य लाभाय और शनैः शनैः। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या है, आपकी बुक में देखिए इसमें चित्र बने हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में। तो ये एक्सरसाइज जो है उसमें आपको करना क्या है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, बालाः कुत्र तरन्ति,
उसका ये आंसर है। दूसरा प्रश्न है बालिकाः केन क्रीडन्ति, इसका आंसर होगा बालिकाः केन क्रीडन्ति। ये प्रश्न है, इसका आंसर होगा बालिकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। ठीक है बच्चों, इस अभी और इसी तरह और जो फिगर दिए हुए उनके मैं आंसर लिखा रही हूं। ओके, हाँ बच्चों, अब देखिए लिखितम एक्सरसाइज नंबर 4। चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी बुक में चित्र बने हुए हैं, प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर देना है। तो देखिए मैंने भी यहाँ प्रश्न लिखे हैं और उत्तर लिखे हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। बालः कुत्र तरन्ति, बालः तरणताले तरन्ति। बालिकाः केन क्रीडन्ति, बालिकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। उद्याने कानि विकसन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। भक्तः कं नमति, भक्तः सूर्यं नमति। छात्राः विद्यालयं केन गच्छन्ति, छात्राः विद्यालयं बस याने गच्छन्ति। ये इसका उत्तर होगा। भक्तः कं नमति, भक्तः सूर्यं नमति। शुकः किं खादति, तोता क्या खाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, शुकः आम्रं खादति। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हाँ बच्चों, अब ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, किम सर्वनाम के उचित रूपों से वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, इसमें जो है वो मिक्स है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के जो है रूप वो मिक्स है। तो आप देखेंगे ध्यान से, जो पुल्लिंग का है उसका पुल्लिंग का रूप लिखना है और स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग। का, के, काह, कम, कौ, कान, कया, काभ्याम, काभी, केन, काभ्याम, कैः, कस्य, कयोः, केशाम, कस्या, कयोः, कासु, कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है, तो जहां पर रिक्त स्थान दिया है इस एक्सरसाइज में, वहां पर आप वर्ड्स को लिखेंगे और इस तरह से एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज ये चैप्टर 5 उद्यानम कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज भी इसकी कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे अपना कार्य समय से पूर्ण करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।